Good morning, students. In the last lab, few students were there, and I completed this practical. First practical जो तुम्हें करना था, plot frequency response of two-stage RC coupled BJT amplifier with and without feedback, and calculate the bandwidth gain product. ठीक है? So I explain you this whole practical. This is object, required apparatus. Then theory you need to write down what we mean by RC couple. Then this is a technical diagram which is on your Adatron trainer board is there that I told you to draw. And फिर प्रोसीजर लिख के ऑब्जर्वेशन टेबल में हमने डिस्कस करी थी और फिर इस तरह से ग्राफ हमने फॉर्म किया था विथ रिजल्ट्स, conclusion and precautions. So what you need to write down in each practical is object 1, then second is a required equipment, theory, excuse me, fourth is a circuit diagram, fifth is a procedure, 6 is a observation, 7 is a calculation, 8 is a graph, 9 is a result, and 10 is a conclusion, and 11 is a precaution. These 11 points used to be all in your practical. तो जो नहीं थे और जिन्होंने अटेंड किया है उनसे वो पूछ लेंगे. और इसकी रीडिंग्स भी मैंने I make the students aware with them by performing this practical in the lab before this session has been started. So these were the readings: the frequency input signals, then the logarithmic value, output value, voltage gain, and then voltage gain in dB. और फिर ये जो वैल्यू आई थी हमारी लोअर एंड हायर फ्रिक्वेंसीज की, दिस फ्रिक्वेंसीज यूज्ड टू बी गेट बाय दिस प्लॉट. द फर्स्ट वन इज अ लोअर फ्रिक्वेंसी एंड द हायर वन इज दिस, और इन दोनों के बीच के गैप को हम बैंडविड्थ को. ठीक है, माय स्क्रीन इज विजिबल? यस मैम. Yes, ma'am. नाउ विजिबल और प्रीवियसली विजिबल? Now visible, ma'am. Yes, ma'am. अब visible है. हाँ, तो प्लीज बताना चाहिए ना तुम्हें कि स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही. आई वॉज एक्सप्लेनिंग लाइक what I explained. This was the practical which we have been discussed. ठीक है, two stage RC coupled amplifier. The graph we need to plot with and without feedback. 11 points were there. Who were there in the class? I suppose Santosh and Neil and all were there. Gaurav, ठीक है. और इसी की वैल्यूज जो मैंने निकाली थी वो तुम्हें नोट डाउन करने को कही थी, so that when you write this practical on your profile, because nobody know when the pandemic is over and you will come, so you need to start writing your lab file, because after completing 12 practical I will give you 10 days time to submit on the Google Classroom whose code I have shared with you. ठीक है, अब नेक्स्ट प्रैक्टिकल हम आज कर रहे हैं, दैट इज FET. व्हाट वी डिसाइडेड कि पहले हम RC कपल, FET और रेगुलेटर वाला, ये जो 4 प्रैक्टिकल है, इट्स थ्योरी यू हैव बीन स्टडीड इन द लास्ट सेमेस्टर. विल कंप्लीट दैट. हैव योर एनालॉग सर्किट क्लासेस स्टार्टेड बेटा? यस नील, क्लास चालू हुई क्या एसी की? नो मैम. No, ma'am. कौन पढ़ाने वाला है? मैम चंदन सर पढ़ाएंगे शायद तक, पता नहीं है मैम, कंफर्म नहीं है अभी. चलो नहीं भी होगा तो भी अपने को ये 4 प्रैक्टिकल के बाद तो फीडबैक एम्पलीफायर आई नीड टू स्टार्ट, है ना? ठीक है. नाउ बिफोर आई विल एक्सप्लेन, यू जस्ट नोटेड डाउन द ऑब्जेक्ट. इसमें हमें क्या करना है? प्लॉट और स्टडी करना है FET की और ट्रेनर किट के अलावा क्या क्या apparatus रिक्वायर्ड है, प्लीज राइट डाउन दैट. आफ्टर दैट FET थ्योरी, इतना ज्यादा नहीं, 4 लाइन लिख लोगे तो भी चल जाएगा. व्हाट वी मीन बाय FET? दैट यूजेस द इलेक्ट्रिक फील्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट. And the device has a 3-terminal source, gate and drain. Fine, and it is, और ये वाला point जरूर लिख लेना अभी. It is called unipolar transistor because single carrier type operation is there.
An FET is used to be either the electron or as a charge carrier, but not both. दोनों इसमें नहीं रहते, या तो इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे या होल रहेंगे, इसीलिए इसे यूनिपोलर ट्रांजिस्टर कहते हैं. ये चीज तुम लिख लो, ठीक है. राइट डाउन द ऑब्जेक्ट, required equipment and theory. When you complete, please let me know. Write down fast बेटा. When you complete, please let me know. मैंने वैसे रितेश सर वगैरह को इन्फॉर्म कर दिया है कि तुम्हारी थ्योरी स्टार्ट की जाए, बिकॉज अदरवाइज प्रैक्टिकल्स हो जाएंगे लेकिन तुम्हें बेसिक कंसेप्ट नहीं पता रहेगा, देन नोबडी कैन हेल्प यू आउट. I did duty from my side. Among you, anyone of one is informed Ritesh sir, like ऐसी circuit classes yet not been started. It is not a complaint, it is your requirement. Because in practical, I will let you make aware only which is needed for your practical. Yes, ma'am. Done. Completed till theory? Yes, ma'am. After this, I just tell you यूनिपोलर ट्रांजिस्टर क्यों कहते हैं, और ये इसमें दोनों तरह के कैरियर्स नहीं होते, सिंगल टाइप के कैरियर्स होते हैं. नाउ प्लीज राइट डाउन टाइप्स ऑफ योर एफईटी. दैट इज वन इज अ जंक्शन एफईटी, सेकंड इज अ इंसुलेटेड गेट एफईटी. ये 2 टाइप्स के होते हैं. ओनली राइट डाउन देयर नेम्स. देन हमें जो प्लॉट करनी है वो कैरेक्टरिस्टिक करनी है, तो उसके लिए मैं जरूर तुम्हें कहूंगी पहले तो लिख दो टाइप्स ऑफ एफईटी, ये दोनों नाम लिखो. फिर कैरेक्टरिस्टिक में होती है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरी होती है तुम्हारी ट्रांसफर. दिस बोथ की मैं तुम्हें डिटेल जरूर कहूंगी कि तुम लिखो. तो पहले तो ये टाइप्स लिखो, फिर व्हाट इज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफईटी करके फर्स्ट डालना आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है. दैट इज अ कर्व बिटवीन आईडीएस एंड वीडीएस कीपिंग वीजीएस कांस्टेंट. ये लिख के डायरेक्ट तुम ये बनाओ, फिर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ. ठीक है.
लिख लिया क्या? जेएफईटी और इंसुलेटेड गेट आईजीएफईटी होता है, इसको तुम जेएफईटी भी लिख सकते हो और इसको आईजीएफईटी भी लिख सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक में आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? दैट इज ये लाइन लिख लो। उसके बाद जो रीजन्स है वो ग्राफ में अपन ऑलरेडी डिफाइन करके आई विल एक्सप्लेन यू। राइट एंड फास्ट। Yes, ma'am. Completed. बाकी सबने भी लिख लिया? Yes, ma'am. This is a graph. Please draw VDS versus ID keeping VGS constant. अब इसमें ये रीजन कौन कौन से है? That I will let you know. First you make this graph. This is the graph of output characteristic. फिर transfer characteristic का नीचे है, पहले ये बनाओ उसके बाद उसको देखो। Yes, ma'am. Done. Okay. अब उसके बाद ये ग्राफ ऑफ ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक भी बना लो। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक का जो ग्राफ रहता है दैट इज द ग्राफ बिटवीन आईडी वर्सेस VGS. Okay, and keeping what constant? Keeping VDS constant. Fine. So ये इसमें लिखा नहीं है लेकिन तुम लोग लिख लो। आउट बेसिकली ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? व्हेन द ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन आईडी एंड VGS सॉरी एंड कीपिंग VDS कांस्टेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तुम्हारा। ड्रॉ दिस आइडियल ग्राफ। ये दोनों ग्राफ ही हमें कैरेक्टरिस्टिक्स में निकालने हैं। ठीक है, मेक इट फास्ट। Yes, ma'am. Then Okay. Fine. Now write down these regions. Ohmic region, कांस्टेंट का ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तुमने पढ़ा भी होगा। बेसिकली व्हेन, अब मैं अगर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करती हूँ, सो व्हेन आई एम changing my output voltage as the current used to gradually increase, this is called the ohmic region. ठीक है, and when up to a limit however I am enhancing VDS but ID has no increment, that is called saturation. ठीक है, और ये वाला ये रीजन है। अब ये तुम्हारा theoretical circuit diagrams है and this is your practical circuit diagram of your lab. So पहले तो बनाओ theoretical circuit diagram जिसमें ये VGG है, VDS है, and make it bit fast.
एटलीस्ट एक दिन में एक प्रैक्टिकल हो, मैं ये चाह रही हूँ, है ना। अभी इसकी टेबल वगैरह बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। जल्दी बनाओ बेटा। कंप्लीटेड? Yes, हाँ बेटा। yes, ma'am. I completed. Yes, ma'am. गौरव, कार्नेल, नील, अरुणामा, अनुजा, सनी, यस मैम, संतोष। हो गया मैम। Okay, this was a theoretical diagram of your FET in which what we did, gate, source and drain जो है उसमें हमने VDS और VGG कनेक्ट कर रखा है, सप्लाई यहाँ नेगेटिव टू पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव टू नेगेटिव है। एक ग्रेट रेजिस्टेंस हमने 1 मोह का लगा। अब टेक्निकली डायग्राम जो देखते हैं, जो हमारे ब्रेड बोर्ड पे या जो हमारे ट्रेनर किट पे है कॉलेज में, वो ये इस तरह से, ये रियोस्टेट है तुम्हारा, वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसको वेरी करेंगे तभी यहाँ पे पोटेंशियल चेंज होगा। यहाँ तुम VGS नोट करोगी और यहाँ पे VDS और ये एम्पियर का। Again, one potentiometer is going to be here. So what you need to pay attention is here, that is this is VGS, this is VDS and this is ID. So पहले this practical you can perform on a breadboard also by connecting 2 voltmeter and 1 ammeter for the readings. But here in your trainer kit it is inbuilt is there. You need to only note down the reading while you are changing this. As you change this, VGS is going to be changed and you need to take the value of ID, VDS and IDS. Okay. Now question comes, why we have another variable resistance at output terminal. So this variable resistance for the transfer characteristic of FET, because in the transfer characteristic what we will do, we will not vary the VGS. In our output characteristic, VGS को constant रख के हम इनकी value निकालते हैं. Whereas in a transfer, keeping VDS constant, you take the value of VGS and IDS. That is why input and output, both side one variable resistance is needed. Now please write down fast and draw the circuit, then write down the procedure. Procedure में पहले transfer characteristic की लिख लो, then I will explain you the output characteristic. What you need to do is keep the fixed value of VDS, say 5 volt पे हमने ले लिया, and while VGS is 0. Then gradually VDS को 5 पे ही रख के gradually जैसे जैसे तुम increase करोगे VGS, you need to note it down the value of ID with the help of current meter. And then you need to draw the, not VI characteristic, sorry, that is you need to draw transfer characteristic. ठीक है, चलिए लिखो। Make it fast. क्या है?
डायग्राम बना लिया बेटा? Yes, ma'am. यस मैम। या प्रोसीजर लिख लो। ट्रांसफर के बाद आउटपुट में क्या करोगे? VGS को कांस्टेंट करके VDS को पहले 0 पर रखोगे, फिर कीप VDS इंक्रीजिंग एंड नोट डाउन द वैल्यू ऑफ ID. That will be your VI characteristic. फिर इसमें सेम वही है, रिजल्ट, कंक्लूजन, प्रिकॉशन। इसकी रीडिंग्स हम नहीं निकाल पाए थे, ये किट हमें नहीं मिल रहा था बिकॉज ये वाला जो किट है इसकी तुम्हें नेट पे अगर वैल्यू मिलती है या कहीं से भी तुम्हारे सीनियर से, तो वो करके ग्राफ प्लॉट करना। ग्राफ आएगा ऐसा ही, द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ इज गोइंग टू बी लाइक दिस एंड ट्रांसफर इज दिस। मीनवाइल अगर बीच में कभी कॉलेज ओपन हुआ 4 के बाद और जाना हुआ, आई विल ट्राई, अदरवाइज व्हाट यू नीड टू डू इज, और टेबल कैसे बनेगी? इसमें VGS कांस्टेंट रख के वो 2 टेबल बनेगी, इसमें VDS कांस्टेंट करके वो टेबल, सॉरी ऊपर VGS कांस्टेंट होगा, नीचे VGS, और इसमें वो ग्राफ अपन ने लिखा नहीं है, ग्राफ भी आएगा प्रोसीजर्स के बाद। वेट, एक तो पहले क्या आएगा? ऑब्जर्वेशन टेबल। ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन टेबल आएगा और एक आएगी कैलकुलेशन। फाइन, पैटर्न फर्स्ट, ये तुम्हें लिखना है। अगर ऑब्जर्वेशन कहीं से मिल जाती है देख लो, अभी तो पैंडेमिक में, और कैलकुलेशन नहीं, सॉरी ग्राफ, यस कैलकुलेशन अगर कुछ रहते हैं, वैसे कैलकुलेशन इसमें है नहीं, तो फिर क्या आता है अपने पास? ग्राफ। ग्राफ में वो दोनों ऊपर हमने आइडियल ग्राफ बताए थे, तो मैं प्रैक्टिकल ग्राफ बनाऊं। प्लीज डू इट फास्ट, थोड़ा बहुत अपन नेक्स्ट प्रैक्टिकल एक्सप्लेन कर लेंगे अगर टाइम मिला तो। Ma'am, done, ma'am. हो गया बेटा? सबका हो गया? Yes, ma'am. अनुजा, Yes, ma'am. अरुणामा, संतोष, नील, okay. So today Yes, we ma'am. completed the second practical, that is plot and study the characteristic of small signal amplifier using FET. The theory as far as the output and transfer characteristic is there, we draw the ideal graphs. What you need to do is that प्रतिभा, चारू या इनसे किसी से बात हो, इन्होंने भी फाइल, इनके टाइम में हम लोग का जाना स्टार्ट हो गए थे कॉलेज जून एंड में लास्ट ईयर, सो दैट प्रोबेबली हैव, अदरवाइज तुम ये लिख दोगे तो भी चलेगा, फिर जब जैसी कंडीशन रहेगी वैसे अगर मिल जाती है तो इट्स वेल एंड गुड। नील, अगर तुम्हें मिलती है और तुम बनाते हो तो मुझे व्हाट्सएप करना फोटोज, ऑब्जर्वेशन टेबल एंड ग्राफ्स की, ओके। बाकी रिजल्ट नॉर्मल जैसे ऊपर वाले में लिखा है वैसे ही लिखना है। कंक्लूजन एंड प्रिकॉशन इज गोइंग टू बी द सेम व्हिच आई एक्सप्लेन यू इन अ फर्स्ट क्लास, ओके। दैट्स इट फॉर दिस। Now your next practical is जैसे कई प्रैक्टिकल हैं जिनको मैंने परफॉर्म कराया, तो उनकी सबकी रीडिंग्स जैसी ये तुम्हारा शंट और सीरीज रेगुलेटर वाला अपन करेंगे, सो दैट इज ऑल्सो अगेन स्टडी प्रैक्टिकल। लेट्स वी सी।
Now your next practical will be series regulator. जितना होता है 40 मिनट्स में उतना तो लिख लो. सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट लिख लो, apparatus required and the theory. Our object is series voltage regulator, measure the load and line regulation for both नहीं for series regulator, voltage regulator. शंट का अगले प्रैक्टिकल. राइट डाउन प्लीज. ऑब्जेक्ट, रिक्वायर्ड apparatus, थ्योरी. अपने कुछ नहीं है, अपने जल्दी हो जाएंगे तो तुम्हें मैं टाइम देके आई विल मेक यू फ्री. Those whose faculties are not taking class and that is their issue. I just want you to complete your lab in time. At least 15 जून तक भी हो जाएगी या 30 जून तो चलेगा. अभी बहुत प्रैक्टिकल है. Write down theory. What we mean by regulator? Basically, the regulated power supply is a keep output voltage constant regardless of variation in the load current. Regulation means यही होता है, whatever changes are coming at input or output terminal, but my output voltage used to be constant. ठीक है. And the voltage regulators जो है सीरीज और शंट दो टाइप के होते हैं. The circuit provide out. ये पूरा लिख लो तुम, क्योंकि रेगुलेशन में मैंने देखा है बच्चा फाइनल ईयर तक पहुंच जाता है, then also he or she has a doubt. ठीक है. Write down fast and let me know when you complete. हो गया. अरुणामा, अनुजा, नील, संतोष, गौरव. Done, ma'am. हो गया मैम. Yes, ma'am. Done. यस मैम डन. Now these are the types of अपन ने सबसे पहले definition बताई. What we mean by regulators means keeping my output voltage constant regardless of any change in a load current or AC main voltage is a regulation. What two types of regulators are there? Each type of can provide DC voltage that regulate and maintain its. ठीक है. Now series voltage regulator क्या होता है तुम्हारा? That is element control the magnitude of input voltage which gets the output voltage sampled by the circuit, and it provides feedback voltage to compare to a reference voltage. If there is a increase in output voltage, it provides a control signal which causes the series control element. अगर कुछ भी variations आते हैं आउटपुट में तो इसका जो series control element जो रहता है वो क्या करेगा? Reduce the magnitude of output voltage. By any means अगर output voltage बढ़ना चाहेगा तो उसको control कर देगा by the series control elements. That is the main function of this series voltage regulator element. It causes the series control element to increase the magnitude of output voltage. Somehow अगर output voltage ज़्यादा हो रहा होगा तो ये series elements उसको कम करेगा, और कभी कम हो रहा होगा तो उसको ज़्यादा करेगा. ठीक है. Write down first. ये तो तुम लिखी दो. तुम्हारे थ्योरी में कोई अभी क्वेश्चन मार्क इज स्टिल देयर, तो एटलीस्ट जो प्रैक्टिकल कर रहे हो उसका पूरा मीनिंग और थ्योरी तो तुम्हें आना चाहिए, है ना बेटा. लिख लो. आज ये आधा प्रैक्टिकल हुआ तो भी कुछ नहीं. नेक्स्ट लैब में अपन ये कंप्लीट करके और शंट रेगुलेटर कर लेंगे. और इसकी भी रीडिंग्स, अब तो ये पैंडेमिक में रीडिंग्स नहीं भी मिल पा रही है तो भी माय सजेशन इज दिस: complete the all theoretical points and all the points which I am explaining you. इतना भी तुम कर लोगे लास्ट एंड में तो भी बहुत है.
और अगर सिचुएशन चेंज हो जाती है विद द ग्रेस ऑफ गॉड और लैब्स वगैरह खुलती है तब इनकी रीडिंग्स लिख लेंगे. लेकिन अगर नहीं भी हुआ सपोज इतना तुम भी कर लोगे, that is also 60 to 70% sufficient. 30% backlog is for the readings that I will try my best when the department is going to be open. So relax. That is my duty towards you. Now, इसमें बस तुम ये लोड और लाइन रेगुलेशन लिख लो. सर्किट डायग्राम में नेक्स्ट क्लास में करूंगी. ये प्रैक्टिकल सर्किट डायग्राम है जो तुम्हारी ट्रेनर किट पे है. सो हैव यू कंप्लीटेड सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर? Yes, ma'am. यस. Yes, ma'am. ओके अब बस ये लिख लो. देन आई एम एंडिंग द ले. मेरे फाइनल ईयर की क्लास भी एक और. लोड रेगुलेशन क्या होता है? वी नो लोड माइनस वी फुल लोड अपॉन वी नो लोड मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है. सो change in regulated output voltage when the load current changes from minimum to maximum. और line regulation क्या होता है? VIDC minus V naught DC upon VIDC means change in regulated output voltage for a specified range of line voltage. ठीक है. बेसिकली इस प्रैक्टिकल में तुम्हें वही वेरी करके रीडिंग्स लिखनी रहती है. फिर किस किस की रीडिंग लेनी रहती है? नो लोड वोल्टेज की, फुल लोड वोल्टेज की, डीसी वैल्यू इनपुट, डीसी आउटपुट वैल्यू की, और फिर लाइन और लोड रेगुलेशन निकालना है. दैट इज द प्रैक्टिकल. एटलीस्ट फॉर्मूले तो लिखो. Do it fast, beta. I have a next lecture. अब कल तुम्हारी लैब नहीं है, ठीक है. और लेट्स सी अगर आई विल गेट टाइम तो मैं कल भी ले लूंगी तुम्हारी लैब. तो एटलीस्ट 4 प्रैक्टिकल हो जाएंगे क्योंकि नेक्स्ट वीक आई में टेक अ लीव. ठीक है. तो कल भी तुम्हारी एक लैब ले लेंगे. टाइमिंग आई विल लेट यू. ओके नील? ओके मैम. नेक्स्ट वीक शायद मैं 1-2 दिन की छुट्टी लूं. और वीडियो लेक्चर्स अपलोड होते जा रहे हैं. डोंट रिमाइंड मी. मैं को जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं तुम्हें अपलोड कर दूंगी. Yes, ma'am. Done. Now give your attendance. Remaining will do in tomorrow. I will let you know regarding the timings. मैं चाह रही हूँ एटलीस्ट 4 प्रैक्टिकल हो जाए तो तुम 4 तो लिखो. कल भी कल मेरा एक ही थ्योरी पीरियड है तो कल शायद मैं तुम्हारी क्लास ले लूंगी. अरुणामा, आर यू देयर? अनुजा, सनी, गौरव, कर्नेल, नील, यस मैम. संतोष. Yes, ma'am. ये रंजीत, विकास कुमार ये आते नहीं है क्या? मुस्कान एक दिन आई थी फिर आई नहीं. चलो तो today's conclusion is we completed the FET practical and half of the part of our series regulator we have completed. That is
ऑब्जेक्ट, apparatus required and theory. 3 points we have completed. ठीक है? Wait a minute. Arpit is there? Yes, ma'am. तुम इस क्लास में हो क्या अर्पित? Yes, ma'am. पहली क्लास अटेंड कर रहे हो? मैम एक्चुअली घर में कोई इशू हो गया हाँ? था एक्चुअली। मैम एक्चुअली घर में कोई इशू हो तुम्हारा गया था। नाम तो है ही नहीं इसमें अर्पित। मैम अर्पित जोशी, मैं इसी क्लास का स्टूडेंट हूँ मैम। नहीं 6 सेम में हो या 4th सेम में हो? मैम हाँ? 4th मैम। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, तेज बोलो। 4th सेमेस्टर मैम। 4th सेमेस्टर? यस मैम। Why your name was not in a list? डिप्लोमा से हो क्या? यस मैम। अच्छा, तभी तुम्हारा नाम नहीं। पहले तुमने कब क्लास ली? मैम फर्स्ट क्लास है मैम, 3rd सेम में थी वो। एक्चुअली कुछ तुम्हारी मेडिकल first इशू year? हो गया था। ठीक है। यस मैम। अर्पित जोशी, 4 प्रैक्टिकल होने वाले हैं, फर्स्ट अटेंड कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मार्क्स भी ऐसे ही मिलेंगे तुम्हें। अब रेगुलर रहो, है ना बेटा? यस मैम। Okay, God bless you. Take care. See you tomorrow. That is yet not certain. I will take your class tomorrow, not, but I will let you know.